رو کریں گے جنگ کا، جہاں پر چینی کی بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر چینی 85 روپے فی کلو ہو گئی، عام بازار میں قیمت 110 روپے تک جا پہنچی۔ جنگ میں چینی کی قیمت مقرر نہ ہو سکی، جبکہ دکاندار منمانی قیمتوں پر چینی فروخت کرنے لگے۔ مارکیٹ میں چینی 110 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بھی قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ چینی ان کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت سستی چینی کی دستیابی کو یقینی بنائے۔ غریب عوام سے چینی جو تھوڑی سی سستی مل جاتی تھی، اب وہ بھی 100 سے اوپر چلی گئی ہے۔ اب لوگ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے دن بدن جو مہنگائی اتنا زور پکڑ رہی ہے، کوئی دن ایسا آئے گا کہ نوبت پہلے بھی فاقوں پہ ہے، بٹ پھر تو لوگ مرتے ہی چلے جائیں۔ چینی کا ریٹ 110 روپے ہے اور اس سے پہلے 85 روپے بھی ریٹ تھا۔ اب ہمارے ملک میں گنا بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود چینی یوٹیلیٹی سٹور پر بھی نہیں مل رہی، اور یہ جو چینی مل رہی ہے اس کی مٹھاس نہیں ہے۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی کی قیمت بڑھا کر 85 روپے فی کلو کر دی گئی ہے۔ فیصل آباد میں حکومت کے قائم کردہ سہولت بازار تقریباً غیر فعال ہو گئے۔ آٹے کی قلت، سبزیاں، پھل، گھی اور چینی بھی میسر نہیں۔ خواتین اور شہری رعایتی اشیاء کے حصول کے لیے خوار ہو گئے ہیں۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے سہولت بازار قائم کیے گئے۔ ریاض شاہد چوک میں قائم سہولت بازار میں آٹا، گھی، چینی اور دیگر اشیاء میسر نہیں۔ شہری ہاتھوں میں پیسے لے کر آٹے کے منتظر ہیں۔ اشیاء کی قلت رہتی ہے اور سرکاری نرخوں پہ تو اویلیبل نہیں ہوتی چیزیں، زیادہ ریٹس ہیں۔ آٹا مل جاتا ہے لیکن وہ بھی 1-1.5 گھنٹے میں وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی گاڑی آتی ہے اور جتنے بیگز اس میں آتے ہیں وہ ایسے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں۔ مزید آٹے کی یہاں پہ فیسیلیٹی جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ آٹا لینے آئے جی، تو آٹا یہاں پہ آسانی سے مل جاتا ہے؟ نہیں، جب یہ ہوتا ہی نہیں آتا اور نیا لا جب بک جاتا ہے۔ ضلع کے دیگر سہولت بازاروں میں سبزیاں اور پھل میسر نہیں۔ خواتین اور شہری رعایتی اشیاء کے حصول کے لیے رل گئے۔ تاہم ڈپٹی کمشنر محمد علی کہتے ہیں کہ انہیں مسائل کا اندازہ ہے۔ بنیادی طور پہ تو ہماری جو 13 آئٹمز ہیں ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس میں چونکہ چینی کے حوالے سے پہلے قیمت کا تعین نہیں تھا، اب چینی کا 89 روپیز جو قیمت جو ہے وہ مختص کر دی گئی ہے۔ ان 10 بازاروں میں صرف وہ 13 آئٹمز جو ایک پور مینز مینیو ہوتا ہے وہ وہاں پر اویلیبل ہے۔ ضلع انتظامیہ نے بازار تو لگوا دیے مگر اشیاء خورونوش کی فراہمی بھی اس کی ہی ذمہ داری ہے۔ کیمرامین قمر گجر کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ اجرت بڑھاؤ ورنہ دمادم مس کلندر ہوگا۔ جنگ میں لیبر قومی موومنٹ کا اجرت میں اضافہ نہ ہونے اور سوشل سیکورٹی کارڈز کے عدم اجرا پر احتجاج۔ مزدوروں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبات کی منظوری کا مطالبہ کر دیا۔ جنگ میں لیبر قومی موومنٹ نے اجرت میں اضافہ نہ ہونے اور سوشل سیکیورٹی کارڈ کے اجرا نہ ہونے پر احتجاجی دھرنا دیا۔ شہر بھر سے مزدوروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی، جبکہ ضلع انتظامیہ سے اجرت میں اضافہ نہ کرنے کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ مزدور رہنما بابا لطیف کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے گزٹ آرڈر جاری کرنے کے باوجود تاحال ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، جبکہ مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کارڈ کی فراہمی کے دعوے بھی پورے نہ ہو سکے۔ پنجاب حکومت نے گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جو کہ 1 جولائی سے لاگو ہو چکا ہے، لیکن اب جب کہ اگست شروع ہو چکا ہے جہاں پہ ان کی اجرتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ پنجاب حکومت کے گزٹ کے مطابق ہماری اجرتوں میں اضافہ 14.28% بنتا ہے، اور اس کے علاوہ جنگ کے تمام مزدوروں کو میں بتانا چاہتا ہوں، کیا کسی کے پاس سوشل سیکورٹی کارڈ ہے؟ تمام کے تمام فیکٹری مالکان سوشل سیکورٹی کے کروڑوں روپے کے ڈیفالٹر ہیں، ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، لیکن جب مزدور کی اجرت کی باری آتی ہے تو وہ اس پہ بالکل انکاری ہو جاتے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے میں مزدوروں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبات کی منظوری کا مطالبہ کیا، جبکہ مطالبات پورے نہ ہونے پر لاہور کی جانب پیدل مارچ کی دھمکی بھی دے دی۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے عوام کو ملے گا اب صاف شفاف پانی۔ آب پاک اتھارٹی کا ضلع ٹوبہ میں 22 نئے فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ۔ تمام پلانٹس آئندہ 2 سال میں مکمل کر کے فعال کر دیے جائیں گے۔ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کے عوام کو ملے گا پینے کا صاف پانی۔ ضلع بھر میں نئے 22 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ اس حوالے سے چیئرمین آب پاک اتھارٹی شکیل خان کی زیر صدارت میونسپل کمیٹی دفتر میں اجلاس ہوا۔ ایم پی ایس سعید احمد سعیدی، چودھری اشفاق، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ شکیل خان کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں فلٹریشن پلانٹس کی جگہ کا تعین کر لیا گیا ہے۔ کوئی بھی پلانٹ قائم کرنے کے بعد 1 سال تک ٹھیکیدار اس کی دیکھ بھال کرے گا اور پلانٹ کی باقاعدہ نگرانی کی جائے گی۔ چیزیں بن جاتی ہیں اور اس کے بعد افتتاح ہونے کے بعد ہر کوئی بھول جاتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ جو اس گورنمنٹ کا جو ایک طریقہ کار ہے اور جو ہم اس وقت آب پاک اتھارٹی میں جتنا بھی کام کر رہے ہیں، ہم پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن اور مینٹیننس کو کس طرح سے ہم انشور کریں، سسٹینیبلٹی کو۔
तो उसमें पहला साल जो है वो कंट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उसने ऑपरेशन मेंटेनेंस करनी है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है लगवाएंगे, जिसमें से 7 तहसील टोबा के अंदर लगाए जाएंगे। और बेहतरीन बात आप पाक अथॉरिटी की ये है कि ये एक ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबिलिटी जो है उसको ये इंश्योर करेंगे। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से शहरी पीने के साफ पानी से मुस्तफीद हो सकेंगे। फैसलाबाद लेबर सेंटर और सीसीयू वार्ड इंतजामिया पर पैसे बटोरने का मुबैना इल्जाम। डीएचक्यू इंतजामिया ने लेबर सेंटर की जगह वागुजार कराने के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी का कहना है कि लेबर सेंटर और सीसीयू वार्ड डीएचक्यू अस्पताल की अराजी पर बने हैं, जबकि दोनों इदारे NGOs चला रहे हैं। लेबर सेंटर और सीसीयू को बिजली, गैस और मेडिसिन हम फराहम कर रहे हैं। इसके बावजूद मरीजों से पैसे वसूल किए जाते हैं। सारी यूटिलिटीज उन्हें हम दे रहे हैं, बिजली भी हम दे रहे हैं, सीवरेज भी हम दे रहे हैं, मेडिसिन भी हम दे रहे हैं, गैस भी हम दे रहे हैं, और वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है। वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास 2 मेडिकल के यूनिट हैं, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जबकि वहाँ पे भी इसके पैसे चार्ज किए जाते हैं। MS का मजीद कहना था कि लेबर सेंटर और सीसीयू फ्रंट पर होने के सबब हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। जगह वागुजार कराने के लिए हुकूमत से राब्ता किया है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी लेबर सेंटर चौधरी इशफाक ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि मरीजों से पैसे वसूल नहीं करते, मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हम किसी से एक पैसा भी नहीं लेते जो हमारे पास OPD में आते हैं, जो हमारे दाखिल होते हैं। अगर किसी के पास ये सबूत है तो वो साबित करे कि मैं, क्योंकि देखो बेटे, हमारे जितने भी मेंबर हैं ना, वो सारे के सारे शहर के पूरे नोटेबल हैं, जो करोड़ोंपति हैं बल्कि अरबोंपति हैं। डीएचक्यू अस्पताल को जगह की कमी के बाइस पार्किंग समेत दीगर मसाइल का भी सामना है। डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया का मजीद कहना है कि अगर लेबर सेंटर और सीसीयू वार्ड की जगह वागुजार करवा ली जाती है तो यहाँ पे नए मनसूबे के तहत मुख्तलिफ वार्ड बनाए जा सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अदादार हुसैन, फैसलाबाद। चुगताई लैब मरीजों को घर की दहलीज पर सहूलत पहुंचाने के लिए सरगर्म है। मरीजों की सहूलत के लिए होम सैंपलिंग का आगाज कर दिया। मरीज चुगताई लैब की ऐप और वेबसाइट पर टेस्ट बुक करवा सकते हैं। तकरीब का अहवाल जानते हैं इमरान असमल की इस रिपोर्ट में। चुगताई लैब फैसलाबाद ने मरीजों की सहूलत के पेश नजर सबसे बड़े होम सैंपलिंग का आगाज कर दिया। होम सैंपलिंग की तकरीब रेलवे कॉलोनी पोलो क्रिकेट ग्राउंड तारकाबाद में मुनक्कद हुई, जिसमें CEO चुगताई लैब डॉक्टर अख्तर सहेल चुगताई, डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर उमर, कंट्री हेड सेल्स एंड मार्केटिंग चुगताई लैब जवेरिया खान समेत चुगताई लैब्स की टीम्स के मेंबरान शरीक हुए। CEO चुगताई लैब डॉक्टर अख्तर सहेल चुगताई का कहना था कि 3 अफराद से काम शुरू किया, आज 3000 अफराद काम कर रहे हैं। मंसूबा पैसा बनाने के लिए नहीं, खिदमत खलक के लिए शुरू किया। बहुत सारे लोग हैं जो खुद से लैब तक चल के नहीं आ सकते। बहुत से लोग हैं रात को देर तक काम करते हैं और अपने रूटीन के टेस्ट करवाना चाहते हैं। सुबह सुबह उठना पड़े यदि आपका फास्टिंग सैंपल होना है, या कोई बहुत बीमार है घर पे, तो वो लोग चल के नहीं आ सकते लैब तक। तो उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए हमने ये फ्री होम सैंपलिंग सर्विस शुरू की है। हम बहुत सारे शहरों में शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले बड़े स्केल पे लाहौर में किया था, और बड़े स्केल पे अब हम फैसलाबाद में ये शुरू कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। डायरेक्टर ऑपरेशन चुगताई लैब डॉक्टर उमर और कंट्री हेड सेल्स एंड मार्केटिंग चुगताई लैब जवेरिया खान ने कहा कि मरीज ऐप या वेबसाइट पर टेस्ट बुक करवा सकते हैं। शहरियों को होम सैंपलिंग की सहूलियत फराहम कर दी है। अब हम पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारा सबसे बड़ा फ्लीट है, और हम पूरे पाकिस्तान में पेशेंट्स को उनके घरों में, उनके ऑफिसेज में, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कोविड की सैम्पलिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं और बाकी टेस्टिंग भी करते हैं। सो इस वक्त ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, टोबा टेक सिंह, जंग, मियांवाली, आप जिन भी शहरों का नाम लें, सो हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज हमने इस सर्विस का आगाज़ बाकायदा तौर पर फैसलाबाद और उसके साथ आसपास के शहरों में भी, झांग में भी, टोबा टेक सिंह में भी किया है। उस टीम की इनॉग्रेशन, उन सारी टीम को मोटरसाइकिल दी गई हैं आज, और ट्रेनिंग पहले कर चुके हैं, और ये सर्विस इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना बाकी सारे मुल्क के पेशेंट्स को सर्व करेगी। शहरियों ने चुगताई लैब की जानिब से होम सैंपलिंग के आगाज को खुशशाइन करार दे दिया। कोरोना के मतलब और अपनी टीम के मतलब ये पूरा बता रहे हैं कि किस तरह लोगों को फ़ायदा है, क्या काम करना है, कैसे करना है। अपने स्टाफ को वो सहूलत दे रहे हैं कि जो आदमी मेहनत करता है उसको कोई ना कोई, यानी ये फारिग नहीं करते, आगे ले जाते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर CEO डॉक्टर अख्तर सहेल चुगताई ने होम सैंपलिंग टीम को मोटरसाइकिल की चाबियां फराहम की, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल मुलाजमीन में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी चुगताई लैब की जानिब से होम सैंपलिंग का आगाज कर दिया गया। अब शहरियों को कहीं भी किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं। शहरी ऑनलाइन ऐप्स के जरिए चुगताई लैब में अपने
सैंपल्स बुक करवा सकते हैं। कैमरामैन वहीद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। कोहिनूर टाउन पार्क में सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टी चौधरी यासीन की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि सैलानी वेलफेयर के ट्रस्टी चौधरी यासीन की वालिदा की नमाज जनाजा कोहिनूर टाउन पार्क में अदा की गई। समाजी, सियासी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। MN फैजुल्लाह कमोका, MS चिल्ड्रन अस्पताल हबीब बुटर, MPA फकीर हुसैन डोगर, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बुखारी, ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़िया अलमदार, एग्जीक्यूटिव मेंबर हाफिज राशिद, तर्जमान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर जलाल आरिफ, सेक्रेटरी ऐवान सदर डॉक्टर तारिक सरदार ने और शिरकत की। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी के लिए सूबा भर के लिए रिजर्व फोर्स मुतय्यन। 36 अजला में पंजाब कांस्टेबलरी और तरबियती सेंटर से 235 रिजर्व्स ड्यूटी करेंगे। फैसलाबाद के लिए 8, जंग 6, टोबा और चिन्नौट के लिए 4 रिजर्व्स मुतय्यन। रिजर्व फोर्स 5 से 10 मुहर्रम हराम तक अजला में ड्यूटी करेगी। फोर्स की रिहाइश, खाना और ट्रांसपोर्ट सलाई पुलिस सरबराह की जिम्मा होगी। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी के लिए सूबा भर के लिए रिजर्व फोर्स मुतय्यन कर दी गई है। DPO चिन्नौट के ज़ेर सदारत मुहर्रम हराम की मुनासबत से इजलास हुआ। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए तमाम तर इक़दामात और उधर जंग में भी डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल और DPO सरफराज फिर की ज़ेर सरबराही एमरजेंसी कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। जंग में भी डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल और DPO सरफराज विरिक की ज़ेर सरबराही एमरजेंसी कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। मुहर्रम हराम में अमन अमान को यकीनी बनाने समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल की जानिब से तमाम मुतल्लिका अदारों को मुहर्रम हराम के हवाले से इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गयी। फयाज मोहल कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 24 घंटे फ़ाल कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील कौंसल्स मुहर्रम हराम के इंतजामात मुकम्मल करेंगी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन जिला चिन्नौट के ज़ेर एहतमाम में मुहर्रम हराम के हवाले से आज़ादारी कॉन्फ्रेंस सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि मुल्की सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करते हुए आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अपने मुल्क में वहदत को फ़रोग देना है। कॉन्फ्रेंस में जिला भर से उलमा कराम, ज़ायरीन, बानियाने मजालिस, जलूस, मातमी दस्तों के सालार, इमाम बारगाहों और मसाजिद के मुतवल्ली हजरात, दीनी मदारिस के तुलबा, सियासी शख्सियात और तंजीमी ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहसील चक झुमरा में डाकुओं पर काबू पाने के लिए डॉल्फिन फोर्स की इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वज़ीर अजमल चीमा, ज़िला जनरल सेक्रेटरी PTI शेर अफगन और DSP निशाताबाद ने शिरकत की। तहसील झुमरा में क्राइम की शरह बढ़ी और शहरी खौफ व हिरास का शिकार हुए तो अरकान असम्बली को मैदान में आना ही पड़ा। सूबाई वजीर अजमल चीमा की खसूसी काविशों से झुमरा में डॉल्फिन फोर्स का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें जिला जनरल सेक्रेटरी शेर अफगन और DSP निशाताबाद फयाज खान ने भी शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर अजमल चीमा का कहना था कि उम्मीद है डॉल्फिन फोर्स के क्याम से जुराइम में कमी आएगी और ये फोर्स अपना किरदार बखूबी निभाएगी। जुमरे की बहुत बड़ी जरूरत थी। हमारे अंजमन ताजरान और जो बाकी शहरी हैं वो यहाँ पे अपने को गैर महफूज समझ रहे थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने हाजी साहब ने कहा, हम गए RP साहब से रिक्वेस्ट की, DSP साहब ने बड़ी हमारी मावनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कह सकते हैं कि वो फोर्स हमारे झुमरे में आई है जो हम सबको जब हम रात अंधेरों में सोएंगे ये हमारा ख्याल रखेंगे। सिटी फैसलाबाद और सिटी चक झुमरा है। अब ये फेडमिक का एक बहुत बड़ा दायरा है, यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त बहुत थी। इस हवाले से मैंने RPO साहब से CPO साहब से रिक्वेस्ट की कि चक झुमरा को भी डॉल्फिन के साथ अटैच किया जाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात मानी और आज चक झुमरा में बाकायदा डॉल्फिन का इफ्तिताह किया। डॉल्फिन फोर्स की 4 एहलकारों पर मुश्तमिल ये टीम रात को नवाही इलाकों में गश्त करेगी और जुराइम पेशा अनासर पर काबू पाने में मौसर किरदार अदा करेगी। चक झुमरा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए RPO साहब और CPO साहब की खसूसी हिदायत पर डॉल्फिन स्क्वाड का इफ्तिताह किया गया। ये इंशाअल्लाह थाना पुलिस के लिए एक हेल्पिंग हैंड होगी और ये जुर्म को जड़ से उखाड़ के रख देंगी। शहरियों का कहना था कि डॉल्फिन फोर्स के क्याम से वो मुतमईन हैं। तहसील झुमरा में डॉल्फिन फोर्स के क्याम का अमल यकीनन यहाँ के शहरियों के लिए खुशाइन है। शहरी पुरामीद हैं कि इससे जुराइम में कमी होगी। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। बरामदात में जुलाई का महीना कितना फायदेमंद रहा, रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। जबकि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी बराए लाइस्लान का इजलास होसरी मार्केट जिनाह कॉलोनी में हुआ।
रामदात में जुलाई का महीना कितना फायदा मंद रहा। रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। चैम्बर से 943 CO जारी हुए, जिनमें से 4.07 करोड़ डॉलर के ऑर्डर्स आए। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन से 782 सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी हुए। 782 सर्टिफिकेट के बरक्स 4 करोड़ 88 लाख डॉलर से जायद के ऑर्डर्स मौसूल हुए। एबोमा के जुलाई में 352 CO पर 1 करोड़ 79 लाख डॉलर के ऑर्डर्स आए। उम्मीद है अगस्त में बड़ा एक्सपोर्ट फिगर सामने आएगा। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर कैसर शम्स कहते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बहुत डिमांड है। यार्न शॉर्टेज का मसला फौरी हल किया जाना चाहिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी ब्राय लाइजोन का इजलास होजरी मार्केट जिनाह कॉलोनी में हुआ। सदारत साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान ने की। उन्होंने कहा, लाइजोन इजलास का मकसद चैम्बर की ग्रोथ में इजाफा करना है। इसी सिलसिला में आज होजरी मार्केट जिनाह कॉलोनी के अहदेदारान से मीटिंग की। इनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेने के हवाले से गाइड किया गया ताकि मेंबरान की तादाद में इजाफा किया जाए। फैसलाबाद ऐवान सन्नत व तिजारत में मकी क्लॉथ मार्केट के ताजरों की मीटिंग। जेर सिदारत सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जावेद तकरीब का एहतमाम। नए मुंतखब अहदेदारों की जानिब से हल्फ बर्दारी में अपने अहदों का हल्फ उठाया गया। सदर सुल्तान बट, सेक्रेटरी जनरल शेख इमरान समेत दीगर ने हल्फ उठाया। इस मौका पर शेख आमिर लियाकत, मियां नवीद, जुनेद बांट, अब्दुल माजिद मुआज, शेख मोहम्मद रियाज बिला समेत दीगर भी मौजूद थे, जबकि साबका चेयरमैन एबटमा चौधरी हबीब गुजर ने खसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का फैडमिक के दफ्तर का दौरा। सीपे के तहत बनने वाले पंजाब के पहले मेगा प्रोजेक्ट अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पर काम की पेशरफ्त का जायजा लेने फैडमिक दफ्तर पहुंचे। चेयरमैन फैडमिक मियां काशिफ अशफाक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। नए सनती यूनिट्स के लिए गैस, बिजली, पानी, सिविक सेंटर और बुनियादी ढांचे की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। तकरीबन 20 सनती यूनिट्स ने पैदावार का आगाज कर दिया है, जबकि बाकी यूनिट्स भी रवां साल के आखिर तक काम शुरू कर देंगे। गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारों को बेहतरीन मराहती पैकेज दिए जा रहे हैं ताकि मईशत को मजबूत और गरीब तबके के हालात को बेहतर बनाया जा सके। चेयरमैन फैडमिक का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म ने सनती यूनिट्स के लिए 500 मेगा यूनिट्स और मेगावाट ग्रिड स्टेशन जबकि 40 MMCF गैस की मंजूरी दे दी है। जश्न आज़ादी की आमद डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में खवातीन कैदियों के दरमियान मिली नगमों और तकारीर का मुकाबला। DIG जेल सईदुल्ला गोंदल ने पोजीशन होल्डर खवातीन में इनामात तकसीम किए। सब्ज और सफेद रंग की पोशाकें जेब तन किए और हाथों में परचम थामे ये बच्चे माओं के साथ जेल में ही रिहाइश पजीर हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद की लेडी बैरक्स में यौम आजादी की मुनासबत से तकरीब का इनाकाद किया गया। DIG जेल सईदुल्ला गोंदल ने बच्चों के साथ जश्न आजादी का केक काटा। उनका कहना था कि तकरीब का मकसद वतन से मोहब्बत का इजहार करना है। मुख्तलिफ नौइयत के कंपटीशन करवाए हैं, जिनमें यौम आज़ादी के हवाले से मिली नगमे और तकारीर के मुकाबले हुए और इसके साथ साथ फेस पेंटिंग के यहाँ पे मुकाबले हुए। हमारे टैबटा की चूँकि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं तो उनकी मदद से उन्होंने मुख्तलिफ पेंटिंग के जो है वो कंपटीशन करवाए। तकरीब में कैदी खवातीन के दरमियान मिली नगमों और तकारीर का मुकाबला भी हुआ, जबकि पोजीशन लेने वाली खवातीन में इनामात भी तकसीम हुए। जेल में मुकीद खवातीन ने अपने दुख भुलाकर वतन की आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाया। हर दिल के उफ़क़ पर है चांद एक सितारा एक, है कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा एक। हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान, हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है। तकरीब के इख्तिताम पर वतन अजीज की सालमियत और तरक्की के लिए दुआएं भी की गईं। जेल की चार दीवारी में मुकीद हैं तो क्या हुआ, वतन अजीज से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जेल में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद सेमिनार का इनेकाद किया गया। चारों मसालिक के जय्यत उलमा ने शिरकत की। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान जिंदाबाद सेमिनार का इनेकाद जामिया लासानी में किया गया। सरपरस्ती आलमी मुबल्लिग साहबजादा पीर अबू अहमद मोहम्मद मकसूद ने की, जिसमें जुमला मकातब फ़िक्र के जय्यत उलमा शरीक हुए। मरकजी सदर तहरीके इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाज खान ने कहा कि बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हुसूल पाकिस्तान के लिए जुमला मसालिक व तबकात को इकट्ठा किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती।
तमाम मसालिक उलमा चाहिए जिस तरह से क़याम पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद थे, उसी तरह वतन अजीज की तरक्की और सलामती के लिए भी इकट्ठे रहेंगे। फैसलाबाद में प्लांट फॉर पंजाब डे मनाने का सिलसिला जारी। पीएचए ने समुद्री रोड पर 7,000 पौधे लगाए। एमएनएज फैजुल्लाह का मौका, शेख खुर्रम शहजाद और एमपीए फिरदौस राय की तकरीब में शिरकत। पीएचए की जानिब से प्लांट फॉर पंजाब डे मनाया गया। मुहिम के तहत समुद्री रोड की केनाल साइड ग्रीन बेल्ट पर 7,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। स्कूल के बच्चों और अगलीती बरादरी की खवातीन ने भी पौधे लगाए। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम मिनॉरिटी की तरफ से हमने अपना हिस्सा डाला है प्लांटिंग करने के लिए। क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान। शजरकारी मैम के लिए आए हैं। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि पौधों से हमें ऑक्सीजन हासिल होती है, जो कि हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चाहिए कि हम अपने फैसलाबाद में पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और हम कोशिश भी करेंगे कि हम अपने स्कूल में जाके भी पौधे लगाएं और अपने फैसलाबाद को पौधों से हरा सब्ज कर देंगे। चेयरमैन पीएचए मियां वारिस अजीज, चेयरमैन एफडीए लतीफ नजर, एमएनए फैजुल्लाह का मौका, एमएनए शेख खुर्रम शहजाद और एमपीए फिरदौस राय, कमिश्नर साकिब मनान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और डीजीपीएचए आसमा एजाज चीमा ने भी मुहिम के तहत पौधा लगाया। नबी सल्लम की अहादीस सुन्नत है पौधे लगाना, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक फैसलाबाद को, इस मुल्क पाकिस्तान को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए लोग निकले हैं, इंसानियत के लिए निकले हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ का मकसद जो है वो लोगों को अवेयरनेस देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगें। ये 7,000 पौधे लगाने का जो मामला है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो ट्री सुनामी का कॉन्सेप्ट है, प्लस यौम आज़ादी के हवाले से जो 75 साल तकरीबात में हमने ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का काम करना है, उसके हवाले से, और प्लस जो एक शजरकारी की मुहिम चलाई जाती है, तो ये सारी चीज़ों को आज यकजा किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम 1 मिलियन से ज़्यादा पौधे जो हैं वो इस दफ़ा उनकी प्लांटेशन करवाएं। इस दफ़ा एक ज़रा थोड़ी डिफरेंट चीज़ ये है कि हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हज़रात हैं वो 6 फुट से बड़े पौधे जो हैं वो उनकी प्लांटेशन पे फोकस कर रहे हैं। पीएचए की टीम है, डीजी हैं, ये तमाम हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप इसका रिजल्ट देखेंगे। और नो डाउट कि इसकी केयर की ज़रूरत होती है और हमें इसकी केयर भी करनी है इन पौधों को लगा के। हम कम वसाइल के बावजूद, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी एनर्जीज जो हैं वो आपको पता है इस वक्त कोविड से फाइट करने में सर्फ हो गई हैं, वसाइल की कमी का सामना है, लेकिन इसके बावजूद हमारी ये कोशिश है कि हम फिलैंथ्रोपिस्ट के थ्रू सिविल सोसाइटी को एंगेज करके जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक मिशन है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, उसको ज़रूर आगे बढ़ाएं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से अपनी बेहतरीन खिदमात जो है वो पेश कर रहा है। आज हमारे 80 के करीब गर्ल गाइड्स और इतने ही स्काउट्स जो हैं इस शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। 15,000 पौधा जो पीएचए ने लगाया है, और जो मुखैर हजरात फाउंडेशन वगैरह तकरीबन 30,000 पौधा उन दोस्तों ने लगाया है आज के दिन। और ये मैं पूरे फैसलाबाद को इस बात की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शजरकारी मुहिम में गर्ल गाइड एसोसिएशन और स्कूल तलबा ने भी शिरकत की और मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का अज़म जाहिर किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।